heat and temperature. What do you mean by heat? Heat is form of energy. This energy produces in human body a sensation of hotness and coldness. Okay, the substance is hot or cold. How much hot, how much cold? Okay, this will be decided by the amount of heat content. Clear? Heat is source of heat is energy, and you know different units of energy. Energy can be measured in different system in different unit. Okay, generally the practical unit of heat is calorie. Practical unit of heat is calorie. Shortly it is written as CAL. Otherwise SI unit. सर जो जैसे 5 का पैकेट लेते हैं चिप्स का, उसके पीछे लिखा होता है कि इसमें इतनी कैलोरीज हैं. Yes. सर वो भी सेम ही चीज होती है. Yes. SI unit of heat is joule because it is energy. The unit of energy in SI system is joule, in CGS system it is arc. But as far as measurement of heat energy is concerned, we make use of the practical unit of heat as calorie. Now the question is, what is 1 calorie? What is 1 calorie? Let us suppose you have any substance in any state, solid, liquid or gas, mass is m, you supply heat, okay, so what heat will do? Heat is energy, it has the capacity to do work. Heat can perform two functions. Number one, heat can change the temperature of the substance. Number two, heat can change the state. It can cause change of state, it can cause change of temperature. So these two functions which is performed by heat energy will not take place at the same time. Okay, when you supply heat, let us say this function is going on, change in temperature is going on, temperature is rising if you are supplying heat, temperature is falling if you are withdrawing heat. Okay, so when this function will be over, then second function will start. For example, if you take water is in the liquid state. Okay, you can take any amount of water, supply heat. Okay, let us suppose initial temperature is T1 degree Celsius. When you supply heat, final temperature is T2. You have changed the temperature from T1 to T2 of liquid water of mass m. Okay, how much heat is required to change the temperature? It will depend upon the mass of the substance and the specific heat and the change in temperature. Specific heat, I told you, amount of heat required to change the temperature of unit mass by 1 degree. 1 ग्राम का 1 डिग्री टेम्परेचर चेंज करना हो, जो हीट चाहिए वो कितनी चाहिए, वो उसकी स्पेसिफिक हीट है. गॉट माय पॉइंट? तो आपने मान लीजिए ये सब्सटेंस ले लिया लिक्विड वाटर. अब वाटर की स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस -1. Specific heat of water. Water exists in different form. You have ice, you have water, you have its different form, steam. Same substance exists in different form. Okay, you can have ice is a form of water itself liquid, then steam, evaporated form of water. Same chemical formula. Okay, different state.
all the three states of water will not have the same specific heat. Specific heat of ice is 0.5 calorie per gram per degree Celsius. Specific heat of water is 1 calorie per gram degree Celsius minus 1. Okay. Specific heat of steam is 0.47 calorie per gram degree Celsius per degree Celsius. What do you mean by this? If you take ice, 1 gram ice, and change the temperature of 1 gram ice by 1 degree, keeping the state same, means ice should remain ice. You have to change the temperature only. I told you heat can perform two functions. These two functions cannot be performed by heat energy at the same time. Either there will be change in temperature or there will be change in state. Two changes cannot occur at the same time. Okay? And which change will occur first will depend upon initial temperature. You know, ice start melting at 0 degree. Ice melting point is 0 degree. And if you take ice at minus 5 degree Celsius, it will remain ice up to 0 degree Celsius. It will start melting only when its temperature becomes 0 degree. And you have taken 1 gram ice, let us suppose at minus 5 degree. And you want to change the temperature from minus 5 degree to minus 4 degree, 1 degree. 1 gram of ice at minus 5, you want to increase the temperature from minus 5 to minus 4, 1 degree. How much heat is required? 0.5 calorie. At the same time, if you take 1 gram of water, okay, keeping its state same, only change of temperature by 1 degree is required. So when you heat 1 gram of water by 1 degree, you require 1 calorie of heat. And in this case, you say the specific heat of water, substance is water, okay, and heat required by 1 gram on changing 1 degree temperature, okay, that is C. M is 1, T2 minus T1 is 1, the specific heat is amount of heat. So how much amount of heat is required to change the temperature of 1 gram water by 1 degree? 1 calorie. Okay, and exact 1 calorie is defined as, exact 1 calorie is defined as the amount of heat which is required to change the temperature of 1 gram of water from 14.5 degree Celsius to 15.5 degree Celsius. 1 calorie is that amount of heat which is required to change the temperature of 1 gram of water by 1 degree from 14.5 degree Celsius to 15.5 degree Celsius. 1 ग्राम पानी टेम्परेचर 14.5 करना है 15.5, जो हीट चाहिए वो 1 कैलोरी है. एग्जैक्ट, दिस इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ 1 कैलोरी. अगर 2 ग्राम वाटर को 1 डिग्री से इंक्रीज करना है तो उसमें 2 कैलोरी चाहिए. तो ये फार्मूला है फॉर चेंज ऑफ टेम्परेचर. दिस फार्मूला इज देयर. यू कैन टेक एनी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, you can change the temperature of that substance by any amount. Now how much heat is required you will get by this formula. This is the mass of the substance, this change in temperature, and here the specific heat of the substance. A specific heat is special heat है. किसी सब्सटेंस की स्पेसिफिक हीट मीन्स उस सब्सटेंस का 1 ग्राम मास लेना है, उसका 1 डिग्री टेम्परेचर चेंज करना है, जितनी हीट चाहिए उसकी स्पेसिफिक हीट है. कई सब्सटेंस ऐसे हैं जिनका 1 डिग्री टेम्परेचर चेंज करना 1 ग्राम का कम हीट चाहिए, कई ऐसे हैं बहुत ज़्यादा हीट चाहिए. सबसे ज़्यादा स्पेसिफिक हीट किसकी है? ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जो 1 ग्राम ले और 1 डिग्री टेम्परेचर चेंज करें और सबसे ज़्यादा हीट मांगे? नो.
No. Platinum. No. You keep on guessing, but the exact answer is hydrogen. Hydrogen has got the maximum specific heat. You can never think of. ठीक है ना, you're talking about solids. जी, तो good conductor है. सर गैस का ग्राम कैसे लें? क्यों? You can take any you can take any substance in any state, okay, in same amount, 1 gram hydrogen. Matter has got mass. Matter occupies space, you know. So gases are matter. They are the gaseous form of matter. Matter exists in 3 different forms: solid, liquid, gas. Okay. तो आप 1 ग्राम हाइड्रोजन कैसे लें? वो तो इंजीनियरिंग पॉइंट, प्रैक्टिकल पॉइंट है. ये थ्योरेटिकल पॉइंट ये है कि 1 ग्राम सब्सटेंस लेना, जिसकी भी स्पेसिफिक हीट आपको बात लेनी है, 1 ग्राम लेना है. चाहे वो गैस हो, चाहे वो लिक्विड हो, चाहे वो सॉलिड हो. 1 ग्राम सब्सटेंस लेना है, किसी भी स्टेट में हो, 1 डिग्री टेम्परेचर चेंज करना है. जो हीट मांगता है या मांगती है वो 1 कैलोरी है. वो स्पेसिफिक हीट है. 1 कैलोरी तो पानी के लिए है ना. अगर आप स्पेशली वाटर लेते हैं, 1 ग्राम वाटर लेते हैं, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चेंज करते हैं, और वो भी 14.5 से 15.5, तब जो हीट है 1 कैलोरी चाहिए, और उस हीट का नाम स्पेसिफिक हीट है. तो दैट मीन्स स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस. क्योंकि स्पेसिफिक हीट क्या है? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास बाय 1 डिग्री. यूनिट मास हमने 1 ग्राम ले लिया पानी, टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ा दिया, और जो हीट चाहिए उसका नाम स्पेसिफिक हीट है. पानी कहता है मुझे तो फिर ऐसा करने के लिए 1 कैलोरी चाहिए. तो हमने कहा फिर तुम्हारी स्पेसिफिक हीट 1 कैलोरी है. ठीक है. तो पानी की स्पेसिफिक हीट भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैक्सिमम नहीं है. मैक्सिमम तो हाइड्रोजन की है, ये 3 से ज़्यादा है, 3.4 समथिंग है, जो कि मैक्सिमम है. ओके. बाकी सब्सटेंस की इन बिटवीन है. जो सॉलिड्स हैं उनकी स्पेसिफिक हीट तो 1 से भी कम है. उनका तो 1 डिग्री टेम्परेचर चेंज करना बहुत कम हीट चाहिए. जितना वो गुड कंडक्टर होगा उतना कम हीट मांगेगा 1 डिग्री टेम्परेचर चेंज करने के लिए. ओके. तो हाइड्रोजन हैज़ गॉट द मैक्सिमम स्पेसिफिक हीट. वो स्पेसिफिक हीट ऑफ हाइड्रोजन इज 3.4 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस. इसका मतलब क्या है? अब हाइड्रोजन 1 ग्राम लेते हैं, उसका 1 डिग्री टेम्परेचर चेंज करते हैं तो वो 3.4 कैलोरी हीट मांगती है. और वाटर अगर 1 ग्राम लेते हैं, उसका 1 डिग्री टेम्परेचर चेंज करते हैं तो वो 1 कैलोरी हीट मांगता है. आप कॉपर आयरन की बात कर रहे थे, वो तो 1 कैलोरी से भी कम हीट मांगते हैं. ओके. पानी की स्पेसिफिक हीट जो 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, ये इतनी कम नहीं है, बहुत ज़्यादा है. पानी का टेम्परेचर, पानी बहुत देर से गर्म होता है, बहुत देर से ठंडा होता है. जो आपकी अर्थ है वो जल्दी गर्म हो जाती है, जल्दी ठंडी हो जाती है, लेकिन पानी देर से गर्म होता है, देर से ठंडा होता है. अगर नेचर ने पानी की एक क्वालिटी ना दी होती, उसकी स्पेसिफिक हीट इतनी हाई ना की होती, तो सर्दियों में तो ये जो वाटर पाइप्स हैं, आप जाओ कहीं हिमाचल में जाइए, लेह लद्दाख, यस, उसमें पानी जो आइस बन जाता है, और पाइप जो है वो आइस से ब्लॉक हो जाती है. नहाने के लिए पानी नहीं मिलता. पाइप को गर्म करो तब पानी मिलेगा, आइस मेल्ट करेगी. लेकिन वो भी प्लस पॉइंट है सर, एक्वेटिक एनिमल लेक के ऊपर बर्फ जमा हुआ है, तो अंदर थोड़ी सी गर्मी होती है. तो आपको बताया था 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी की डेंसिटी सबसे ज़्यादा है. पानी का 0 to 4 में अनॉमलस बिहेवियर है, आपको मैं बता चुका हूँ. बिटवीन 0 to 4 पानी बिहेव्स एबनॉर्मली. क्या मतलब? बिटवीन 0 to 4 on heating water from 0 to 4 degree in this range, instead of expansion there is a contraction. पानी फैलता नहीं, सिकुड़ने लग जाता है 0 to 4 में. हम कहते हैं ये नॉर्मल बिहेवियर है इसका. जबकि जनरली व्हाट हैपन्स, द थिंग्स सब्सटेंसेस दे एक्सपैंड ऑन हीटिंग, दे कंट्रैक्ट ऑन कूलिंग. बट वाटर, especially in the temperature range from 0 to 4 degree, instead of
expansion, it contracts. All other substances in this temperature range 0 to 4, they expand on heating, except water. Okay, and this is useful in nature for aquatic life. 4 degree water is heaviest. Relative density of substance you compare with water. The density of the substance divided by density of water at 4 degree. Why you take water at 4 degree? It is the densest and its density is 10⁻³ kilogram per meter cube. In CGS system 1 gram per cc. At 4 degree इसकी डेंसिटी 1 ग्राम पर cc या 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ऐसा ही सिस्टम में। ओके, तो बाकी जितने भी सब्सटेंस हैं उनकी जो डेंसिटी है वो वाटर से कंपेयर की गई है, और वाटर भी 4 डिग्री वाला लिया गया। डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री। ओके, एट 4 डिग्री। और यहाँ भी पानी अपनी स्पेशल चीज़ दिखा रहा है कि 1 ग्राम पानी 1 डिग्री टेम्परेचर चेंज करना है, और 1 कैलोरी हीट चाहिए कब? जब उसका टेम्परेचर आप 14.5 से 15.5 करेंगे, तब एग्जैक्ट 1 कैलोरी हीट चाहिए। बाकियों में क्या डिफाइन किया आपने यहाँ से? ये सब्सटेंस का मास है, ये टेम्परेचर चेंज जितना आपने करना है, लेकिन स्टेट नहीं चेंज होनी चाहिए। इन दोनों में से एक काम होना चाहिए। ओके, जब चेंज ऑफ टेम्परेचर होगा तो हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड will be decided by these 3 factors: the mass of the substance, specific heat means nature of the substance, and then change in temperature. Okay, so Q is amount of heat required which can change the temperature of m gram of the substance from T1 to T2, and C is something constant, that is specific heat. Specific heat is amount of heat required to change the temperature of unit mass by unit change in temperature. ओके, तो ये आपने ध्यान रखना है। तो आप हीट एनर्जी ले रहे हैं, 2 काम करते हैं, चेंज ऑफ स्टेट, चेंज ऑफ टेम्परेचर। चेंज ऑफ स्टेट मीन्स आप मेल्टिंग करवाना चाहते हैं, सॉलिड की लिक्विड फॉर्म बनाना चाहते हैं, या लिक्विड का वेपर बनाना चाहते हैं। चेंज ऑफ स्टेट तो 2 बार होगा, एक तो सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, या लिक्विड टू वेपर। वेपर और गैस में भी डिफरेंस आपको बताएंगे जब हम किनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज लेंगे। सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू वेपर। अब यहाँ हमने पानी ले लिया, ये तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करता है। पानी आइस की स्टेट में भी एग्जिस्ट करता है, सॉलिड फॉर्म में भी है, पानी की स्टेट में लिक्विड फॉर्म में भी है, और स्टीम इसका वेपर फॉर्म है। ओके, तो सॉलिड टू लिक्विड ये भी चेंज ऑफ स्टेट है, लिक्विड टू वेपर ये भी चेंज ऑफ स्टेट है। और जब चेंज ऑफ स्टेट होता है, मेल्टिंग जब चल रही होती है, तो चेंज ऑफ टेम्परेचर रुक जाता है। इस केस में आपको कितनी हीट चाहिए चेंज ऑफ टेम्परेचर, चेंज ऑफ स्टेट के लिए? तो फार्मूला इज m into L. m into L. m is the mass, L is latent heat. Latent means hidden. That means when the change of state of a substance is going on, temperature remains constant. Unless this conversion is complete, there cannot be change of temperature. आप 1 क्विंटल आइस ले लो, मेल्टिंग उसकी 0 पे होती है, 0 पे मेल्टिंग स्टार्ट हो गई। जब तक पूरी 1 क्विंटल आइस पिघल नहीं जाएगी, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पर ही खड़ा रहेगा। आप थर्मामीटर यूज़ करो टेम्परेचर मेजर करने के लिए। ओके, और आइस ले लो, हीट करना शुरू कर दो, मेल्टिंग पॉइंट मेल्ट करने लगी है, चेंज ऑफ स्टेट हो गया है। आपने कितनी आइस ली है? 1000 kg, 1 क्विंटल, और एल उसकी लेटेंट हीट है। यहाँ कोई चेंज ऑफ टेम्परेचर की बात हुई नहीं, सिर्फ चेंज ऑफ स्टेट की बात हो रही है, सिर्फ आइस मेल्ट कर रही है। ओके, टेम्परेचर 0 पे मेल्टिंग शुरू हुई, 0 पे मेल्टिंग खत्म हो गई। ओके, और जब तक पूरी 1 क्विंटल आइस मेल्ट नहीं कर जाती, आप जितनी मर्जी हीट सप्लाई करते जाओ। ओके, क्योंकि चेंज ऑफ स्टेट के लिए हीट चाहिए ना, कितनी हीट चाहिए? क्यों? हाउ मच इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड लेटेंट हीट। लेटेंट हीट क्या है? इसको लेटेंट हीट क्यों कहते हैं? ये हिडन है, थर्मामीटर इसको रिकॉर्ड नहीं कर सकता।
जब आपने आइस को हीट सप्लाई करनी शुरू करी, मेल्टिंग शुरू हो गई है, अभी ख़त्म नहीं हुई, कुछ आइस मेल्ट करके वाटर बन गया है। देयर इज ए कोएक्जिस्टेंस ऑफ टू स्टेट्स, आइस एंड वाटर। Substances existing simultaneously in two phases, some ice, some water. लेकिन सर जो वाटर बन चुका है वो तो फिर हीट होना स्टार्ट होगा ना, उसकी टेम्परेचर राइज होगी। नहीं नहीं, जब तक आइस का लास्ट 1 ग्राम भी पानी नहीं बदल में चेंज हो जाता, टेम्परेचर नहीं चेंज होगा, तब तक वो थर्मामीटर रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा। हम कहते हैं यार हम हीट भेज रहे हैं, थर्मामीटर कहते मेरे पास नहीं आई। हमने कहा ये एनर्जी है वो उसकी स्टेट चेंज करने में लग जाती है। हाँ। और थर्मामीटर तक पहुंचती नहीं पहुंचती नहीं, क्योंकि वो खत्म हो गई। वो दूसरा काम, ये काम शुरू, ये काम शुरू कर दिया हीट ने, तो ये काम जब चल रहा होगा तो ये काम नहीं होगा। जब तक ये प्रोसेस चेंज ऑफ स्टेट वाली कंप्लीट नहीं होती, चेंज ऑफ टेम्परेचर नहीं हो सकता। इसलिए जो हीट आप सप्लाई करते जा रहे हो, वो कहाँ जा रही है? थर्मामीटर कहता है मेरे पास नहीं आई। ओके, हम कहते हैं हम तो हीट भेज रहे हैं, हम तो कह रहे हैं हम हीट भेज रहे हैं, थर्मामीटर मेरे पास नहीं आई। हम कहते हैं कहाँ गई भाई, FIR दर्ज कराओ, हीट कहाँ गई? ठीक है। और जब रिक्वायरी हुई कि यार हीट सप्लाई हो रही है, थर्मामीटर कहता है मेरे पास नहीं आई, वो हीट जा कहाँ रही है? वो पता लगा वो छुप छुप कर ये काम कर रही है, थर्मामीटर पता नहीं लगा। तभी तो उसका नाम रखा है हिडन हीट, लेटेंट मीन्स हिडन। उसने छुप कर ये काम शुरू कर दिया और ये काम नहीं हुआ, थर्मामीटर चेंज ऑफ टेम्परेचर रिकॉर्ड नहीं कर पाया, इसलिए ऐसी हीट का नाम रख दिया लेटेंट मीन्स हिडन मीन्स रिकॉर्ड नहीं हो पा रही, थर्मामीटर उसको रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा। मतलब चेंज इन टेम्परेचर के लिए Q इक्वल टू mc और दोनों का बॉडी का टेम्परेचर, हाँ। इनिशियल और फाइनल। चेंज ऑफ स्टेट के लिए Q इक्वल टू mc। वहाँ टी आया ही नहीं, क्योंकि चेंज ऑफ टेम्परेचर हुआ ही नहीं, रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। तो फिर मेल्टिंग में या बॉइलिंग में चेंज ऑफ स्टेट में हीट कितनी चाहिए, दैट इज Q इज इक्वल टू m into L। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। तो जो भी फिक्स टेम्परेचर है, अब चेंज ऑफ स्टेट सॉलिड टू लिक्विड, फिक्स टेम्परेचर कौन सा है? जो कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट द प्रोसेस, उसको मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। आइस का मेल्टिंग पॉइंट 0 है। थ्रू आउट दिस मेल्टिंग प्रोसेस टेम्परेचर 0 डिग्री पे एक्सटेंड करेगा, थर्मामीटर रिकॉर्ड नहीं कर पाएगा। तो चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड टेक्स प्लेस एट ए फिक्स टेम्परेचर, दैट फिक्स टेम्परेचर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। Similarly, when there is a change of state from liquid to vapor, this will also take place at a fixed temperature, that is the boiling point. Okay, in case of water, it starts boiling at 100 degree. Boiling temperature of water is 100 degree. That means that when temperature reaches 100 degree, the water will start boiling. Boiling is a change of state from water to steam, and unless entire water gets converted into steam, temperature will remain fixed at 100 degree. That is the boiling temperature. The change of state takes place at a fixed temperature, and change of state takes place at two different stages. First, when solid mass gets converted to liquid, this one change of state from solid to liquid, it will take place at melting point. Every solid has its own melting point. Ice has its melting point 0 degree. तो डिफरेंट सब्सटेंसेस, डिफरेंट लिक्विड, डिफरेंट सॉलिड, उनका अपना अपना टेम्परेचर है जिस पे चेंज ऑफ स्टेट होता है। तो कोई भी सॉलिड आप ले लो, उसका मेल्टिंग पॉइंट फिक्स है। ओके, वो उस टेम्परेचर पे ही चेंज ऑफ स्टेट पॉसिबल है, और किसी टेम्परेचर पे चेंज ऑफ स्टेट, अगर वेपर को लिक्विड में कन्वर्ट करना है हाँ, तो 99.9 डिग्री सेल्सियस चाहिए होगा। नो, अगर आपने स्टीम बना रही 100 डिग्री पे स्टीम बनी है, और स्टीम को कंडेंस करके आप वापस जाना चाहते हो, वाटर बनाना चाहते हो, तो इसको कंडेंसेशन कहते हैं। वेपर टू लिक्विड, रिवर्स इज आल्सो पॉसिबल, बट वेपर टू लिक्विड इज आल्सो चेंज ऑफ स्टेट, इट विल टेक प्लेस एट फिक्स टेम्परेचर। इन केस ऑफ नहीं, वो तो फिर स्पेशल कंडीशन आपने लगा दी ना। अब आप प्रेशर की भी बात करेंगे, टेम्परेचर की भी बात करेंगे।
तो फिर ये देखना पड़ेगा कि आप जो लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना चाहते हैं कि लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करना चाहते हैं। वेपर एंड जो गैस है वो डिफरेंट फेजेस है। वेपर को लिक्विड आप सिर्फ वेपर को लिक्विड में चेंज करना है, सिर्फ टेम्परेचर चेंज कर दो। जैसे वो बॉइलिंग जो है 100 पे बॉइलिंग हुई, 100 पे ही कंडेंसेशन होगी। स्टेट वही, स्टेट चेंज होगी, टेम्परेचर नहीं चेंज होगा। 100 पे पानी ने बॉयल करना शुरू किया, स्टीम बना, 100 पे ही स्टीम वाटर में दोबारा कन्वर्ट होगी। ओके, जो कंडेंसेशन हो रही है या ये बॉइलिंग हो रही है, ये दोनों चेंज ऑफ स्टेट है। एक की डायरेक्शन इधर है, लिक्विड टू वेपर, दूसरी वेपर टू लिक्विड। मतलब 100 डिग्री डायरेक्शन उल्टी हुई है, लेकिन वो फिक्स टेम्परेचर वही रहेगा। मतलब अगर 100 डिग्री सेल्सियस है हाँ। वेपर का टेम्परेचर, सेम टाइम पे वेपराइजेशन और कंडेंसेशन दोनों होगा। यस, वो टेम्परेचर फिक्स है। ओके, मान लीजिए आप इसको ऐसे दिखाते हैं, इधर आप हीट सप्लाई करते हैं और इधर आप उसकी टेम्परेचर देखते हैं। ओके, यू टेक एनी सब्सटेंस एट एनी टेम्परेचर, पर आपको सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट पता होना चाहिए कि किस टेम्परेचर पे इसने चेंज ऑफ स्टेट करनी है। अदरवाइज आप हीट सप्लाई करते चले जाओ, चेंज ऑफ टेम्परेचर ही होगा, ये नहीं होगा। लेकिन ये काम शुरू हो गया तो ये नहीं होगा। ठीक है, इसमें स्पेसिफिक हीट है, इसमें लेटेंट हीट है। लेटेंट हीट वो हीट है जो 1 ग्राम का स्टेट चेंज कर सकती है विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर। 1 ग्राम सॉलिड का 1 ग्राम लिक्विड बनेगा, 1 ग्राम पानी का 1 ग्राम स्टीम बनेगी। ओके, 1 ग्राम पानी का 1 ग्राम स्टीम 100 डिग्री पे बनेगा, और 1 ग्राम आइस का 1 ग्राम पानी 0 डिग्री पे बनेगा। ओके, और आइस की चेंज ऑफ स्टेट इनटू वाटर एट 0 डिग्री, और ये फिक्स टेम्परेचर हो गया चेंज ऑफ स्टेट में। और यहाँ आइस मेल्ट करती जा रही है, लिक्विड पानी बनता जा रहा है, लिक्विड और जो सॉलिड है आइस और वाटर दो कोएग्जिस्ट कर रहे हैं। ओके, कोएग्जिस्टेंस में क्या हो रहा है, टेम्परेचर चेंज आप कर रहे हो तो ठीक है। अगर चेंज ऑफ स्टेट हो रही है फिर टेम्परेचर आप नहीं चेंज कर सकते, और अगर चेंज ऑफ स्टेट हो रही है टेम्परेचर नहीं चेंज कर सकते, टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो स्टेट चेंज नहीं हो सकती। दोनों में से एक चीज़, या स्टेट फिक्स होगी या टेम्परेचर फिक्स होगा। ये इस केस में टेम्परेचर फिक्स होगा चेंज ऑफ स्टेट में, इसलिए इस फार्मूले में कहीं टेम्परेचर की बात नहीं हुई। वो टेम्परेचर जो फिक्स होगा या तो मेल्टिंग पॉइंट होगा या बॉइलिंग पॉइंट होगा। ठीक है, और कई बार आपको जो सब्सटेंस है प्योर एक स्टेट में नहीं मिलेगा। आइस, ड्राई आइस, क्योंकि उसके पास पानी हो ही ना, आइस गीली हो ही ना, पानी आपको टच करने पे भी ना मिले। कार्बन डाइऑक्साइड को कंडेंस करने आती है ना। यस, वो प्योर सॉलिड है या सॉलिड और लिक्विड कोएग्जिस्ट कर रहे हैं, या प्योर लिक्विड है या लिक्विड वेपर कोएग्जिस्ट कर रहे हैं, या प्योर गैस है। गैस में लिक्विड की बात नहीं कर सकते। वेपर और गैस में भी डिफरेंस है। जब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस कराएंगे तब आपको ये डिफरेंस बताएंगे, क्योंकि जब हमने टेम्परेचर से बात किया स्टेट चेंज करने के लिए, तो इसने पूछा कि अभी प्रेशर से हम ऐसा कर सकते हैं। ठीक है ना, प्रेशर से आप जो उनका जो बॉइलिंग टेम्परेचर है वो आप चेंज कर सकते हो। वो जो फिक्स टेम्परेचर पे चेंज ऑफ स्टेट होनी थी वो आप अर्ली करा सकते हो। प्रेशर कुकर का यही काम है। ठीक है ना, वो उसको सब्लिमेशन कहते हैं। बीच में कई गाड़ियाँ बीच में स्टेशन पे नहीं रुकती, फास्ट रेंज नहीं रुकती। अब एक ऐसी प्रोसेस भी है, सीधा सॉलिड जो है वो वेपर में चेंज हो जाए, लिक्विड बने ही ना। यस, कन्वर्शन भी हो जाती है, उसको सब्लिमेशन कहते हैं। चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू वेपर विदाउट चेंजिंग द सॉलिड इनटू लिक्विड, दैट इज सब्लिमेशन। ठीक है ना। हाँ, सो आपने पहले सबसे पहले देखा कि हीट है क्या, हीट एनर्जी है। एनर्जी हैज़ द कैपेसिटी टू डू वर्क। तो हमने पूछा हीट तो एनर्जी है तो क्या काम कर सकती है, यू हैव द एबिलिटी टू परफॉर्म वर्क, विच वर्क यू कैन डू। कहते बाकी एनर्जी एक एक काम करती होंगी, मुझे तो भगवान ने 2 काम दिए।
हमने कहा बताओ कौन से 2 काम तुम कर सकती हो, भला किसी का टेम्परेचर चेंज करना हो तो हीट कहती है मेरे बिना नहीं होगा, और किसी की स्टेट चेंज करनी हो, फॉर एग्जांपल किसी सॉलिड को मेल्ट करवाना हो, लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करना हो, बॉइलिंग करानी हो, बोला मेरे बिना नहीं होगी। मैं 2 काम कर सकती हूँ, चेंज ऑफ टेम्परेचर, चेंज ऑफ स्टेट। हमने बोला क्या दोनों काम इकट्ठे कर सकती है? बोला नहीं, ये बैन है, एक टाइम पे एक ही काम होगा। तभी मुझे डबल काम दिया गया है ना, एक टाइम पे 2 काम नहीं तुमने करने, एक काम ख़त्म होगा तब दूसरा करना है, ठीक है। मान लीजिए हमने आइस ले ली, हाँ जी, हमने बताया कि जो आइस है उसका स्पेसिफिक हीट, आइस का स्पेसिफिक हीट, वाटर का स्पेसिफिक हीट और स्टीम का स्पेसिफिक हीट सेम नहीं है। दैट मीन जो स्पेसिफिक हीट है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ 1 ग्राम बाय 1 डिग्री, अ यूनिट मास बाय यूनिट, ये सॉलिड की या सब्सटेंस की स्टेट पे भी डिपेंड करता है कि जो सब्सटेंस जिसको आप ले रहे हो, जिसको हीट सप्लाई कर रहे हो, जिसका टेम्परेचर चेंज करना चाहते हो, किस स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है। ओके, क्या वो सॉलिड फॉर्म में, जैसे आइस है, और आइस की स्पेसिफिक हीट, अब पानी की स्पेसिफिक हीट और स्टीम की, दे आर different states of the same matter, but they have different specific heat, which means specific heat will depend upon the state of the substance also. Specific heat of ice 0.5 calorie per gram per degree Celsius. That means to change the temperature of 1 gram of ice by 1 degree, you require only 1/2 calorie of heat. But to change the temperature of 1 gram of water by 1 degree, you require more heat, 1 calorie. And to change the temperature of 1 gram of steam by 1 degree, you require less heat, only 0.47. Okay, so different substances, they exist in different state, and for different state, specific heat of the same matter is different. So I have quoted the example of ice, water, steam, and I have shown you the different specific heat. Then I have given you a gold medalist having maximum specific heat, hydrogen, 3.4 calorie per gram per degree Celsius. Means if you take 1 gram of hydrogen and change its temperature by 1 degree, you require maximum 3.4 calorie heat. इतनी हीट और कोई सब्सटेंस नहीं मांगता है। और जो गुड कंडक्टर्स हैं, मेटल्स हैं, कॉपर है, आपने बात किया, आयरन की बात की, ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, ये बड़ी जल्दी गर्म हो जाते हैं। 1 कैलोरी से भी कम हीट चाहिए 1 ग्राम कॉपर का या आयरन का या एल्युमिनियम का 1 डिग्री टेम्परेचर चेंज करना हो तो कम हीट चाहिए। ओके, 1 से कम चाहिए। पर इन बिटवीन 3.4 एंड 0.07 या 0.47 इसके बीच में चाहिए। मिनिमम जो है वो स्टीम की है, हाँ, मैक्सिमम यस। ओके, तो अब आपको ये पता लग गया कि हीट ने 2 काम करने हैं। जो काम करना है उसके लिए एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी हीट एनर्जी है। कितनी चाहिए कौन डिसाइड करेगा, कौन सा फार्मूला है? तो चेंज ऑफ टेम्परेचर में Q इज इक्वल टू मास ऑफ द सब्सटेंस, स्पेसिफिक हीट ऑफ द सब्सटेंस एंड चेंज इन टेम्परेचर। लेकिन जब चेंज ऑफ स्टेट होगा, मेल्टिंग हो या बॉइलिंग हो, तब हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर। ओके, so that will be calculated by this formula, Q is equal to M into L. Okay, L is the latent heat. This heat is not recorded by thermometer, because when this process is going on, there cannot be change of temperature. Whatever heat you are supplying, that is being used in changing the state only, it is not performing the second work, and that's why thermometer is unable to record the change in the temperature. Change in temperature हो ही नहीं रहा। समझ में आया? तो latent heat भी different solids, different अलग अलग है। अब if you take the case of, let us suppose आप लेते हैं ice, you want to convert it into water, you take 1 gram ice at 0 degree, क्योंकि इसका melting point है, supply heat, it will get converted into 1 gram of water at 0 degree,
इसमें क्या हुआ, देयर इज चेंज ऑफ स्टेट, आइस टू वाटर। फिर अगर दोनों का 0 डिग्री सेल्सियस है तो आइस के भी कुछ पार्टिकल होंगे और पानी भी होगा, ऐसा होगा मिक्सचर सा? नहीं, जब तक देखो, जब तक मेल्टिंग प्रोसेस कंप्लीट नहीं होती है, आइस और वाटर को एग्जिस्ट करेंगे। वो यहाँ दिखाता हूँ। मान लीजिए आपने आइस ले ली -5 डिग्री सेल्सियस इनिशियल टेम्परेचर, ठीक है ना। आपने इसको हीट सप्लाई करनी शुरू कर दी, तो क्या काम होगा उन दोनों में से? पहला काम कौन सा होगा? सर जो आइस है वो लिक्विड में कन्वर्ट होगी। सबसे पहले सॉरी इसका टेंपरेचर इंक्रीज होएगा। इसने बोला कि आइस लिक्विड में कन्वर्ट होगी, कैसे होगी? तो 0 पे होनी है, ये तो -5 पर है। टेंपरेचर बढ़ेगा, फिर पहले टेम्परेचर बढ़ेगा, क्योंकि जब तक -5 लेस देन 0 है, 0 पे मेल्टिंग शुरू होनी है। चेंज ऑफ स्टेट 0 पे होगा, अभी तो टेम्परेचर -5 पर है। तो सबसे पहला काम क्या होगा? इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। तो कौन सा फार्मूला लगाओगे? ठीक है, आपको कितने ग्राम आइस दी है, वो स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस आपको बता दिया 0.5 ओके कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, और चेंज इन टेम्परेचर -5 to 0। तो चेंज इन टेम्परेचर 5 हो गया, फाइनल इज 0, इनिशियल इज -5, चेंज इज क्यों चेंज जो T2 है वो तो 0 है T2 0 है, और जो T1 है वो -5 है। हाँ तो फिर 0 -5 क्यों? 0 में से -5, वो माइनस लेते हैं। 0 में से -5 माइनस करो। यू वांट चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, अटेंशन डाइवर्ट हो जाती है। चेंज इन टेम्परेचर, आपने बोला मैंने आपको आइस दी है, मान लो कितने ग्राम दी है, आइस का मास भी ले लो, मान लो 5 ग्राम। अब 5 ग्राम आइस दी है, -5 टेम्परेचर है, हीट सप्लाई शुरू कर दी है। अब 2 काम हीट करती है, तो यहाँ पहले डिसाइड ये करो कि पहला काम कौन सा शुरू होगा। एकदम तो मेल्टिंग होगी नहीं, वो तो 0 पे होनी है। तो टेम्परेचर तो आइस का -5 है, ठीक। तो फिर इधर आप हीट सप्लाई कर रहे हो, इधर टेम्परेचर चेंज हो रहा है -5 to 0। मान लो आप 0 डिग्री टेम्परेचर, ये मेल्टिंग पॉइंट आ गया। -5 से हीट सप्लाई किया, चेंज ऑफ टेम्परेचर हुआ, पहला काम शुरू हो गया चेंज ऑफ टेम्परेचर। आपको पता करनी है कितनी हीट है, ये फार्मूला है, मास 5 ग्राम, स्पेसिफिक हीट 0.5, चेंज इन टेम्परेचर 5, फाइनल टेम्परेचर 0, इनिशियल -5, तो चेंज विल बी 5 डिग्री। तो मास 5 ग्राम, स्पेसिफिक हीट 0.5 और चेंज इन टेम्परेचर 5 मल्टीप्लाई करके आपको ये हीट पता लग जाएगी कि कितनी हीट रिक्वायर्ड to change the temperature of 5 gram of ice from -5 degree to 0 degree. So up to 0 degree ice will remain ice, क्योंकि चेंज ऑफ टेम्परेचर काम शुरू हो रहा है, चेंज ऑफ स्टेट नहीं हो रही, M/L फार्मूला नहीं लगा। ओके उसके बाद मेल्टिंग शुरू हो गई, जब मेल्टिंग शुरू हो गई टेम्परेचर फिक्स हो गया। अब जब तक मेल्टिंग की दूसरी प्रोसेस है, चेंज ऑफ स्टेट। ओके 0 डिग्री टेम्परेचर आते ही आइस मेल्ट करने लगेगी और चेंज ऑफ स्टेट शुरू हो गया। जब चेंज ऑफ स्टेट शुरू हो गया, अभी तो ख़त्म नहीं हुआ, इट विल टेक सम टाइम टू कन्वर्ट ऑल आइस इनटू ऑल वाटर। ठीक है, चेंज ऑफ स्टेट है, आइस टू वाटर, ये फार्मूला लगेगा। और लेटेंट हीट पानी की कितनी है? 80 कैलोरी पर ग्राम, जिसको हम L बोलते हैं। लेटेंट हीट ऑफ वाटर 80 कैलोरी पर ग्राम। व्हाट डू मीन बाय दिस? कि टू कन्वर्ट 1 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री इनटू 1 ग्राम ऑफ वाटर एट 0 डिग्री 80 कैलोरी हीट इज रिक्वायर्ड। ये चेंज ऑफ स्टेट है, चेंज ऑफ टेम्परेचर नहीं है। M/L फार्मूला लगा दो, M1 है, L 80 है, 80 कैलोरी हीट चाहिए। तो 1 ग्राम की स्टेट चेंज करनी है पानी की, आइस का पानी बनाना है, 1 ग्राम आइस का 1 ग्राम पानी बनेगा। ओके, और आइस का पानी बनाना ये मेल्टिंग प्रोसेस है जो हीट करेगी।
जब मेल्टिंग शुरू हो जाएगी ये चेंज ऑफ स्टेट, तो चेंज ऑफ टेम्परेचर नहीं होगा, जीरो पर ही खड़ा रहेगा। ओके, मेल्टिंग शुरू हो गई है, जब तक पूरी मेल्टिंग कंप्लीट नहीं होती टेम्परेचर जीरो पर ही खड़ा रहेगा। तो वो 0 डिग्री आइस का मेल्टिंग पॉइंट था, टेम्परेचर उसी पे खड़ा है, 0 डिग्री पे खड़ा है। और यहाँ क्या हो रही है, स्टेट ग्राफ क्या बता रहा है, आप हीट सप्लाई करते जा रहे हो लेकिन टेम्परेचर नहीं चेंज हो रहा। तो क्या हो रहा है, मेल्टिंग हो रही है, चेंज ऑफ स्टेट हो रहा है। ओके, यहाँ चेंज ऑफ स्टेट कंप्लीट हो गया, लेट अस सपोज। अब आपको सिर्फ पानी मिलेगा, आइस तो पूरी मेल्ट कर चुकी है, प्रोसेस चेंज ऑफ स्टेट वाली कंप्लीट हो चुकी है। अब टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। ओके, अब यहाँ आप हीट सप्लाई करते जाओ, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। इधर टेम्परेचर है, इधर हीट सप्लाइड है, मेल्टिंग खत्म हो चुकी है, ठीक है ना। बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा, फिर वो फिर से वैसे अब आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओ। अब मान लीजिए 100 डिग्री टेम्परेचर आ गया, जो कि पानी का बॉइलिंग टेम्परेचर है। तो जब जैसी बॉइलिंग शुरू हो गई उसके बाद टेम्परेचर नहीं चेंज होगा, जितनी मर्जी हीट सप्लाई करते जाओ, जब तक पूरा पानी बॉयल करके पूरा स्टीम नहीं बन जाता है, स्टेट ऑफ जो चेंज ऑफ स्टेट प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाती है, तब तक टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। ओके, तो टेम्परेचर फिक्स हो गया, ग्राफ पैरेलल बन गया। जब दो वेरिएबल हो, ग्राफ प्लॉट करना हो, दोनों में से एक चीज़ कांस्टेंट हो, तो ग्राफ पैरेलल चलता है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस और पैरेलल टू वाई एक्सिस। ओके, तो यहाँ पे ये तो चीज़ चेंज हो रही है, हीट तो आप सप्लाई करते जा रहे हो कंटिन्यूसली, हीट तो आप दे रहे हो, लेकिन बॉइलिंग चल रही है, चेंज ऑफ स्टेट चल रही है, टेम्परेचर नहीं चेंज हो रहा, इसलिए हॉरिजॉन्टल ग्राफ आ गया। जब पूरा पानी पूरा स्टीम बन गया, ठीक, बॉइलिंग प्रोसेस कंप्लीट हो गई, अब क्या होगा, स्टीम का टेम्परेचर बढ़ेगा, फिर टेम्परेचर बढ़ने लग जाएगा। 100 डिग्री वाली स्टीम, 102 डिग्री वाली स्टीम, 104 डिग्री वाली स्टीम, जिसको स्टीम होती है 400 डिग्री। हो सकती है सुपर हीटेड स्टीम। अब वो जो स्टीम है वाटर की स्टेट है ना, और टेम्परेचर बढ़ाते चले जाओ, एक ऐसी स्टेट आएगी जब वेपर गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर सिर्फ टेम्परेचर जो है उसके कारण आप गैस को लिक्विड में कन्वर्ट नहीं कर पाओगे, टेम्परेचर के साथ एक और फैक्टर की ज़रूरत पड़ेगी, प्रेशर की। वेपर तो सिर्फ टेम्परेचर चेंज करने से ही लिक्विड में आ जाते हैं, गैस नहीं मानती टेम्परेचर का कहना अकेले का। वो कहते मुझे लिक्विफाई करना है, आपके पास ये है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, सिलेंडर में कुकिंग गैस आती कि नहीं, आइसोप्रोटेन बुटेन का कम्बिनेशन, तो उसमें क्या है, एलपीजी उसका नाम है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ये वेपर नहीं है, गैस है, लेकिन प्रेशर बढ़ाकर, ठीक है ना, टेम्परेचर की हेल्प लेकर इसको लिक्विफाइड किया गया। वेपर को तो अकेला टेम्परेचर लिक्विफाई कर सकता है, कंडेंसेशन कर देता है, तो ओस पड़ती है ना गैस के ऊपर, तो पानी के जो वेपर्स हवा में होते हैं वो कंडेंस कर जाते हैं, आपको पौधों पे या ग्रास पे आपको ओस दिखाई देती है, वो कंडेंसेशन है, वेपर का लिक्विड बना है। लेकिन अगर गैस की फॉर्म आ गई, ओके, वेपर को भी आप गर्म करते चले गए चलते, तो ऐसी स्टेज आ जाएगी जब आपको सिर्फ सब्सटेंस गैसीय स्टेट में मिलेगा। यहाँ कोएग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ देखो दो स्टेट कोएग्जिस्ट करती हैं, क्या यहाँ वाटर भी है और स्टीम भी है, दोनों, क्योंकि अभी पूरी वाटर स्टीम में कन्वर्ट नहीं हुई है, अभी प्रोसेस चल रही है ना। जब तक प्रोसेस चल रही है टेम्परेचर फिक्स है, स्टेट चेंज हो रही है। अब यहाँ स्टेट कंप्लीट हो गई चेंज, पूरा पानी स्टीम बन गया, और उसके बाद फिर टेम्परेचर चेंज होने लगेगा, उसके बोलेंगे सुपर हीटेड स्टीम है, 102 डिग्री वाली, 101 डिग्री वाली स्टीम है, 104 डिग्री टेम्परेचर वाली स्टीम है। स्टीम को भी आप हीट सप्लाई करते जा रहे हो, वो भी एक स्टेट ऑफ मैटर है। ओके, अब उसके बाद टेम्परेचर ही चेंज होना है, क्लियर। तो फिर ये 5 स्टेप में ये प्रोसेस कंप्लीट होगी। यहाँ चेंज ऑफ टेम्परेचर, देन मेल्टिंग शुरू, फिर चेंज ऑफ टेम्परेचर, बॉइलिंग शुरू, फिर चेंज ऑफ टेम्परेचर। ये पहला, दूसरा, ये तीसरा, चौथा, 5वां स्टेप। ये जो पैरेलल ग्राफ है इसमें आप क्या देख रहे हैं, सॉलिड और लिक्विड, सॉलिड एंड लिक्विड दे कोएग्जिस्ट,
क्योंकि जब तक मेल्टिंग पूरी नहीं होती, सॉलिड भी है और उसके लिक्विड भी बना हुआ है, कुछ पोर्शन सॉलिड अभी मेल्ट किया, पूरा नहीं किया, तो दोनों स्टेट इकट्ठी चल रही हैं। ओके, लेकिन हीट ने जो कसम खाई कि मैं एक काम पूरा करूंगी तब दूसरा शुरू करूंगी, तो अभी सॉलिड पूरी तरह मेल्ट नहीं हुआ, तो पानी जो बन गया आइस का, तो अभी आइस और पानी दोनों कोएग्जिस्ट कर रहे हैं, अभी पूरी आइस मेल्ट नहीं करी है, प्रोसेस चेंज ऑफ स्टेट वाली कंप्लीट नहीं हुई। बेशक पानी साथ में कोएग्जिस्ट कर रहा है, टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, पानी को भी सब्र करना पड़ेगा कि यार एक प्रोसेस पूरी होगी तब दूसरी शुरू होनी है, तो तब तक भूल जाओ, जब तक पूरी आइस मेल्ट नहीं करती पानी भूल जा के तेरा टेम्परेचर चेंज होगा, कोई नहीं होना जब तक आइस पूरी मेल्ट नहीं करती। उसके बाद तुम्हारा टेम्परेचर चेंज होगा, जब आइस नहीं रहेगी पूरा पानी बन जाएगा, प्योर लिक्विड होगा। ओके, सिर्फ लिक्विड होगा, तब चेंज ऑफ टेम्परेचर हो जाएगा जब आप हीट सप्लाई करोगे। लेकिन जब कोएग्जिस्टेंस चल रही है, दो स्टेट इकट्ठी एग्जिस्ट कर रही हैं, पानी अभी उबला नहीं है पूरा, पानी का स्टीम बना हुआ है। प्रेशर कुकर के अंदर आप मतलब कोई चीज़ बनाते हो तो पानी का स्टीम बनता है, दोनों कोएग्जिस्ट कर रहे हैं, और जो स्टीम बनती जा रही हो उसका प्रेशर भी बढ़ता जा रहा है। प्रेशर बिल्डअप करते करते वो जो वेट होता है कुकर के ऊपर, उसको उठा के इतनी एनर्जी उसकी आ जाती है अंदर के, उस वेट को उठा के बाहर आना चाहती है स्टीम जो है, ठीक है ना। तो ये याद रखो कि जो हीट है उसको दो काम दिए गए हैं, चेंज ऑफ टेम्परेचर, चेंज ऑफ स्टेट, दोनों काम उसको इकट्ठे नहीं करने, एक काम पूरा होगा तब दूसरा काम शुरू होगा। अब ये आपको पहले डिसाइड करना है कि यार जहाँ हमारे पास आइस थी -5 डिग्री पर, हमने गर्म करना शुरू किया, हीट सप्लाई शुरू कर दी, ठीक है ना, तो फिर एकदम कैसे मेल्टिंग शुरू हो गई? मेल्टिंग तो 0 पे शुरू होनी है, अभी तो टेम्परेचर -5 है, तो टेम्परेचर -5 से 0 करो, और जब टेम्परेचर -5 से 0 होगा तब आइस आइस ही रहेगी, क्योंकि टेम्परेचर चेंज हुआ है, स्टेट नहीं, ठीक है। तो -5 वाली आइस पहले 0 वाली आइस बनेगी, आइस आइस, 0 वाली आइस लिक्विड बनेगी। अब 0 वाली आइस अब मेल्टिंग शुरू होगी, क्योंकि 0 मेल्टिंग पॉइंट आ गया आइस का, तो फिर उसने मेल्ट करना शुरू करना है। फिर ये स्टेट चलेगी, आइस मेल्ट कर रही है, पानी भी साथ साथ में है, आइस भी साथ साथ में, कोएग्जिस्टेंस है, ग्राफ पैरेलल है, टेम्परेचर फिक्स है, और उसको हमने मेल्टिंग पॉइंट बोलना है, सॉलिड कोई भी हो। और जब कंप्लीट हो गई मेल्टिंग, एक प्रोसेस कंप्लीट हो गई, दूसरी शुरू हो गई, चेंज ऑफ टेम्परेचर, ग्राफ चढ़ने लग गया ऊपर। जब चेंज ऑफ टेम्परेचर हो रहा है तो फिर चेंज ऑफ स्टेट नहीं होना, रुक जाएगा। ओके, फिर जब बॉइलिंग पॉइंट आ गया उस लिक्विड का, जो जिससे चेंज ऑफ स्टेट होना है, जैसे पानी बना है तो चेंज ऑफ स्टेट जो है पानी का स्टीम बनना 100 डिग्री पे होगा, 100 डिग्री तक टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। जब 100 डिग्री टेम्परेचर आ गया फिर बॉइलिंग शुरू। बॉइलिंग इज ए चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड वाटर टू स्टीम। तो चेंज ऑफ स्टेट, चेंज ऑफ टेम्परेचर तो होना नहीं, ग्राफ पैरेलल चलेगा। अब जब सारी ये प्रोसेस कंप्लीट हो गई बॉइलिंग वाली, सारा पानी स्टीम में कन्वर्ट हो गया, एक बूंद भी पानी नहीं बचा, उसके बाद फिर स्टीम का टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। तो टोटल हीट कितनी चाहिए इस पूरी प्रोसेस में आपको ऐड करना पड़ेगा, Q1 यहाँ, Q2 यहाँ, Q3 यहाँ, Q4 यहाँ, Q5 यहाँ। ओके, और ये जो Q1 है वो इससे निकलेगा, Q2 इससे निकलेगा, चेंज ऑफ स्टेट वाला, Q3 इससे निकलेगा, Q4 उससे निकलेगा, Q5 इससे निकलेगा, अल्टरनेट चलेंगे। 2 बार लगातार ये फार्मूला नहीं लगा सकते, क्योंकि ये इसके ख़त्म होने के बाद ये शुरू होगा, ये पहले लगा, फिर ये लगा, फिर ये लगा, फिर ये लगा, फिर ये लगा, 5 स्टेप है कंटिन्यूसली। 2 फार्मूले ml सिर्फ और सिर्फ स्टीम ही रहेगी ना, वाटर हट जाएगा। हाँ, पूरा स्टीम बन गया, फिर चेंज ऑफ टेम्परेचर, फिर हाँ, फिर ऊपर जाएगा वो ग्राफ। समझ में आया? अच्छा, चलो अब हमने आपको ये बता दिया कि हीट क्या कर सकती है, हाँ जी, और कितनी हीट उस फंक्शन में चाहिए, कैसे निकलेगी, यो बता दिया। अब है टेम्परेचर। टेम्परेचर को क्लास 7 से बताया जाता है कि
क्या है टेम्परेचर? इट टेल्स यू अबाउट डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड डिग्री ऑफ कोल्डनेस. टेम्परेचर डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट. Heat always flows from a body at high temperature to a body at low temperature, and temperature is different from heat. Okay, one heat produces in us a sensation of hotness and coldness, but how hot, how cold we are या substance is, who will decide? Thermometer. वो क्या, वो किस पैरामीटर को लेके डिसाइड करेगा? टेम्परेचर. जिसका टेम्परेचर ज़्यादा वो ज़्यादा गर्म है, ठीक है, डिग्री ऑफ हॉटनेस ज़्यादा है. टेम्परेचर कम है, डिग्री ऑफ कोल्डनेस है और कम है, तो उसकी डिग्री ऑफ कोल्डनेस और कम है. अब टेम्परेचर मापने के लिए हमारे पास थर्मामीटर्स हैं. थर्मामीटर इज ए डिवाइस विच मेजर टेम्परेचर. देयर आर 5 टाइप्स ऑफ थर्मामीटर्स. ओके, 5 टाइप्स ऑफ थर्मामीटर. नंबर 1, लिक्विड थर्मामीटर. लिक्विड आप मरकरी भी ले सकते हैं, अल्कोहल थर्मामीटर भी होते हैं, हाँ जी, वाटर थर्मामीटर नहीं होते. हाँ, ठीक है ना. डिजिटल में लिक्विड नहीं यूज होता. जिस इंस्ट्रूमेंट में लिक्विड को यूज किया जा रहा है, लिक्विड की प्रॉपर्टी क्या है? लिक्विड विल एक्सपैंड ऑन हीटिंग, कंडक्ट ऑन कूलिंग. लेकिन हमारे पास कोई ऐसा लिक्विड है जिसकी जो एक्सपेंशन है वो यूनिफॉर्म हो. फॉर एवरी 1 डिग्री राइज इन टेम्परेचर सेम एक्सपेंशन हो. यूनिफॉर्म एक्सपेंशन वाला चाहिए लिक्विड. अगर हम मान लें पानी लेते हैं, पानी 0 पे तो आइस ही बन जाएगा. ओके, और फिर वो एक्सपैंड कंट्रैक्ट कैसे करेगा? और 100 डिग्री पे तो वो इतना खुश हो जाता है, डांस करता है, नाचता है, स्टीम बनना है, मेरी चेंज ऑफ स्टेट हो रही है, ठीक है ना. तो फिर उसका लेवल कैसे देखेंगे कि आपने हीट सप्लाई किया, एक्सपेंशन हुआ. अब 100 डिग्री पे तो बॉइलिंग शुरू हो गई, वो तो नाच रहा है, उसका लेवल ही नहीं फिक्स हो रहा, तो कैसे मेज़र करेंगे? तो पानी 0 और 100 के बीच में, क्योंकि मेल्टिंग उसका 0 है और बॉइलिंग उसका 100 है, 0 और 100 के बीच में ही उसका टेम्परेचर किसी बॉडी का मापने के लिए यूज़ किया जा सकता है. पर ये राइज और फॉल करते समय जो ट्यूब है उसको गीला करेगा. हमें ऐसा लिक्विड नहीं चाहिए जो राइज फॉल करते हुए ट्यूब को गीला करे. ओके, जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम हो या बॉइलिंग बहुत ही ज़्यादा हो या नॉर्मल हो, है ना, वो हमें सिलेक्शन करनी पड़ेगी. तो हमारे पास अल्कोहल भी है, वाटर भी है, मरकरी भी है. हमने थर्मामीटर, लिक्विड थर्मामीटर बनाना है, तो हम तीनों का इंटरव्यू लेंगे, ठीक है ना. नंबर 1 कि जब राइज और फॉल करे तो सबको नज़र आए कि इतना राइज कर गया, लेवल ये था, यहाँ पहुँच गया, ठीक है ना. अब आपका वाटर तो ट्रांसपेरेंट है, अल्कोहल की शक्ल भी वाटर जैसी होती है, ठीक, लेकिन मरकरी बड़ा शाइनिंग है. तो हमने मरकरी के पहले पॉइंट पर हमने इंटरव्यू लिया. जैसे पहला सवाल पूछते हैं, अभी आपको एक्सपीरियंस क्या है, आपकी डिग्री क्या है, ठीक है ना. हाईएस्ट डिग्री वाले को कई बार हम कहते हैं भी हाँ ये सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा है, इसको पकड़ो. फिर दूसरा फैक्टर देखते हैं, एक्सपीरियंस है, कहता ना. दूसरा कहता मेरे को तो 20 साल का, कहता ठीक है इसको ले लो, चाहे क्वालिफिकेशन लेस है लेकिन एक्सपीरियंस ज़्यादा है, ठीक है. इस डिसाइड फैक्टर बना रखे हैं उन्होंने कि इस फैक्टर पे हमने इस बंदे को सिलेक्ट करना है. तो लिक्विड 3 आ गए लिक्विड थर्मामीटर बनाने के लिए, हमने इनवाइट किया. तो हमने देखा कि मरकरी शाइनिंग भी है, मरकरी में यूनिफॉर्म एक्सपेंशन भी है, मरकरी का बॉइलिंग टेम्परेचर 357 है. तो पानी वाटर थर्मामीटर से आप 100 से आप टेम्परेचर नहीं माप पाओगे. और जो अल्कोहल थर्मामीटर उसका बॉइलिंग टेम्परेचर भी बहुत कम है, तो उससे भी हाई टेम्परेचर नहीं माप पाओगे. ओके, तो हमने ऐसा लिक्विड चूज़ किया तीनों में जिसका बॉइलिंग टेम्परेचर ज़्यादा, हाईएस्ट तीनों में से अल्कोहल इसका निकला मरकरी का 357 डिग्री सेल्सियस. फिर हमने फ्रीजिंग पॉइंट देखा कि जल्दी तो नहीं जम जाएंगे, जिद्दी बन जाएंगे, ऊपर नीचे जाना ही मुश्किल, रीड कर देंगे, हम नहीं जा रहे नीचे भाई, टेम्परेचर डाउन हो रहा है, कंट्रैक्ट करो, भला हम नहीं करते, जिद पकड़ ली. तो ऐसा लिक्विड भी नहीं चाहिए. तो मरकरी का जो फ्रीजिंग टेम्परेचर है वो -39 है. ओके, वाटर का तो 0 है, ठीक है ना. और अल्कोहल का भी इसके आसपास ही है, लेकिन
हमने जब फ्रीजिंग पॉइंट देखा कि लो से लो टेम्परेचर मापना हो तो तीनों में से कौन सूटेबल है, पता लगा मरकरी लोएस्ट ये -39। सर इतना लो तो होता भी नहीं है बॉडी का टेम्परेचर। क्यों आपको इस वक्त पूरे वर्ल्ड में ये 0 केल्विन टेम्परेचर को अचीव करने की रिसर्च चल रही है, 0 केल्विन, जो कि इम्पॉसिबल है थ्योरेटिकली। 0 केल्विन मीन्स -273 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि टेम्परेचर मापने के लिए आपके पास स्केल हैं, डिफरेंट स्केल्स हैं। पहला स्केल है जिसको हम पहला स्केल है सेल्सियस, दूसरा स्केल है फारेनहाइट, तीसरा स्केल है र्यूमर। टेम्परेचर को मापने के लिए भी हमारे पास स्केल है, डिग्री सेल्सियस स्केल है, फारेनहाइट स्केल है, र्यूमर REAOUMUR, ओके। फिर केल्विन से पहले एक और ले लो, रैंकाइन, उसको डिग्री R बोलते हैं। र्यूमर है, ये रैंकाइन है, फिर केल्विन है। देयर आर 5 स्केल्स, 1 2 3 4 5। रैंकाइन को डिनोट कैसे करते हैं, ठीक है ना। सेल्सियस को डिग्री सेल्सियस, इसको डिग्री फारेनहाइट, डिग्री र्यूमर, रैंकाइन के साथ भी डिग्री लगेगा, लेकिन केल्विन के साथ डिग्री नहीं लगेगा, ध्यान रखना। केल्विन टेम्परेचर अगर आप स्केल यूज़ करते हैं केल्विन में, तो केल्विन को केल्विन में लिखना है, डिग्री नहीं लेनी है हमने, ठीक है। और बाकी जो आप डिग्री सेल्सियस है, र्यूमर है, जो रैंकिन है, वो ऐसे लेते हैं, RA डिग्री R ऐसे, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फारेनहाइट, डिग्री र्यूमर। ये सेल्सियस है, ये फारेनहाइट है, ये र्यूमर है, डिग्री र्यूमर, डिग्री रैंकिन एंड केल्विन। तो वी कैन मेजर टेम्परेचर इन डिफरेंट स्केल्स। सर पेट्रोल जमता क्यों नहीं है? पेट्रोल क्यों नहीं जमता, ये जैसे आपका रिफाइंड है, देसी घी है, मस्टर्ड ऑयल है ना। जो मस्टर्ड ऑयल है ये फ्रीज नहीं होता, क्योंकि इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स, इसकी जो कंस्ट्रक्शन है, कंपोजिशन है, उसमें कई ऐसे हैं जिनका जो फ्रीजिंग पॉइंट है बहुत ज़्यादा, इसलिए वो नहीं जमते। जैसे जो पेट्रोल है वो वेपराइज, वो तो वेपराइज, हाँ, हीट भी तो जैसे वो कंज्यूम करेगा तो वो उड़ जाएगी। जो वोलेटाइल है, ठीक है ना, वोलेटाइल है, जैसे आप सेंट एक बॉटल में ले ली, ढक्कन खोल दिया, उड़ गया पेट्रोल, ढक्कन खोल दिया, वेपराइज हो गया, उड़ जाता है, ठीक है ना। अब फ्रीज करने के लिए फ्रीजिंग टेम्परेचर चाहिए, नॉर्मल जो टेम्परेचर हमारा वेदर में होता है, रूटीन में होता है। हम चंडीगढ़ में मिनिमम टेम्परेचर जाके मानो 1 2 डिग्री 4 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ठीक है, मैक्सिमम 55 या 50 हो जाएगा। तो इस टेम्परेचर रेंज में ये चीज़ें फ्रीज नहीं करेंगी। तो फ्रीज करने के लिए फ्रीजिंग टेम्परेचर चाहिए ना। सर एक ना रशिया में जगह है याकुत्सुक, वो ना उसमें वहाँ का एवरेज टेम्परेचर -68 डिग्री सेल्सियस है। उधर भी नहीं होगा पेट्रोल जमेगा, नहीं तो फ्रिज भी नहीं होता उधर, ना खिड़कियों बाहर ही सामान रखा रहता है। मैं आपको कह रहा ना, कोई कौन सा लिक्विड जल्दी फ्रीज कर जाता है, ठीक है ना। ये मार्केट में आते हैं एलमंड ऑयल है, बादाम का तेल, ठीक है ना, हाँ, फ्रीजिंग इसकी जल्दी हो जाती है। अभी तो इतनी जम जाता है, हाँ जम जाता है। तो उसके फ्रीजिंग टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, उसकी जो कंपोजिशन है। अभी प्योर एक फार्मूला नहीं है उसमें, कई जैसे आपकी जो गैस है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, इसमें आइसोब्यूटेन भी है, एन-ब्यूटेन भी है, और फिर ये जो आइसोमर है, इन आइसोमर की प्रॉपर्टी अलग अलग है। वे केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग है। फिजिकल प्रॉपर्टी में मेल्टिंग, बॉइलिंग, फ्रीजिंग आ जाता है, वो डिपेंड करता है। सर जैसे जो वेपर है जब हीट करते हैं तो जो वेपर निकलती है, सर ये बिल्कुल पेट्रोल क्रूड ऑयल होता है ना, एकदम प्योर, तो वो जम जाता होगा। पेट्रोल तो इतने सारे केमिकल का मिक्सचर होता है,
उसमें तो थाउजेंड केमिकल्स होते हैं उनकी। एनर्जी सोर्स होगा ना। आपको एक पॉइंट बता दिया कि जिसका फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा वो तो जम जाएगा। ओके, अब जो क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल में कुछ एक ऑयल थोड़ी है, उसमें हाइड्रोकार्बन दुनिया जान के हैं। उसमें वैक्स भी है, उसमें डीजल भी है, उसमें पेट्रोल भी है, उसमें कैरोसिन भी है, ठीक है ना। कैरोसिन ऑयल भी उसी के अंदर है क्रूड ऑयल में। फिर उनको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं कि अलग अलग उनका, जैसे गाड़ी में कई सवारियाँ बैठ गई और डिफरेंट स्टेशन आएंगे बीच में स्टार्ट टू एंड, तो सवारियाँ उतरेंगी, ठीक है ना। जो पहला स्टेशन आ गया पहले, तो इन सब का जो बॉइलिंग टेम्परेचर है वो अलग अलग होगा। जब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे, हीट सप्लाई करेंगे, जिसका बॉइलिंग पहले हो जाएगा वो पहले वेपर बन के बाहर आ जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। जिसका उससे थोड़ा हाई टेम्परेचर होगा बॉइलिंग टेम्परेचर, वो और हीट करते फिर सेकंड टर्म पे वो बाहर आ जाएगा। तो सिमिलरली जो हमारे पास लिक्विड्स हैं वो प्योर नहीं है, उसमें कंपोजिशन है, उसमें कोई और भी मिक्स हुए हैं, वो सिंगल नहीं है। तो उन मिक्सचर के अंदर जो डिफरेंट लिक्विड्स हैं उनका फ्रीजिंग पॉइंट डिफरेंट है, ठीक है ना। अब कौन फ्रीज करेगा, जल्दी फ्रीज करेगा जिसका फ्रीजिंग टेम्परेचर ज़्यादा होगा, क्योंकि लो वाला तो बाद में जाके करेगा ना। अब पानी तो 0 पे फ्रीज कर जाएगा, लेकिन मरकरी का तो फ्रीजिंग पॉइंट -39 है, पानी पहले फ्रीज कर गया ना। अब पानी और आप मान लीजिए मरकरी लेते, दोनों का मिक्सर लेते, हालांकि मिसिबल नहीं है, लेकिन आपने इन दोनों को ज्वाइन कर दिया और फ्रीज करना शुरू किया, तो पहले तो पानी फ्रीज होगा ना 0 डिग्री पे, और मरकरी तो जाके -39 पे होगा। और 39 टेम्परेचर नॉर्मली किसी ने बोला आता ही नहीं है, ठीक, तो वो क्यों फ्रीज होगा? तो इसलिए तो उसकी सूटेबिलिटी है फॉर यूजिंग मरकरी इन द लिक्विड थर्मामीटर। तो जो भी लिक्विड आप यूज़ करोगे लिक्विड थर्मामीटर में, उसकी कुछ करैक्टरिस्टिक्स आपने देखनी है। बॉइलिंग पॉइंट उसका हाई होना चाहिए, फ्रीजिंग पॉइंट उसका लो होना चाहिए, यूनिफॉर्म एक्सपेंशन होनी चाहिए, वो उसका जो वो शाइनिंग होना चाहिए, और वो लिक्विड जो जिस ट्यूब के अंदर वो राइज या फॉल करता है उसको गीला ना करे। फिर दूसरा थर्मामीटर आप लेते हैं गैस थर्मामीटर। फिर तीसरा आप लेते हैं जिसको सॉलिड थर्मामीटर बोलते हैं, उसमें प्लैटिनम यूज़ किया जाता है, प्लैटिनम थर्मामीटर। हाँ, टेम्परेचर किसी भी प्लैटिनम का क्या हम प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं जिसके कारण हम प्लैटिनम थर्मामीटर यूज़ करते हैं, ठीक है ना। अब कहाँ यूज़ होगा? अब मरकरी तो ह्यूमन टेम्परेचर, ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मापने के लिए यूज़ किया जा रहा है, क्योंकि नॉर्मल ह्यूमन टेम्परेचर 36.8 डिग्री सेल्सियस है, 98.4 डिग्री फ़ारेनहीट है, ठीक है ना। 98.4 डिग्री से थोड़ा बड़े हम कहते बुखार हो गया, बुखार तो सबको है, सबका टेम्परेचर 98.4 है, ठीक है ना। बुखार उसको नहीं है जिसका टेम्परेचर 0 केल्विन है, बाकी सबको बुखार है। 0 केल्विन टेम्परेचर इम्पॉसिबल है, ठीक है ना। और इस टेम्परेचर को अचीव करने के लिए कई सालों से रिसर्च चल रही है। एक लो टेम्परेचर पे क्या होता है, आप कहेंगे जी लो टेम्परेचर अचीव करने का क्या फ़ायदा है? कई ऐसे हमारे पास कंडक्टर हैं जिनका रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ चेंज होता है, जो प्रॉपर्टी इसमें यूज़ की गई है प्लैटिनम थर्मामीटर में, कि टेम्परेचर बढ़े तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, टेम्परेचर घटे तो रेजिस्टेंस घट जाता है। ओके, तो हमने एक ऐसा सॉलिड लिया प्लैटिनम जिसमें टेम्परेचर का यूनिफॉर्म एक्सपेंशन या कंट्रैक्शन है। ओके, तो हमने इसको यूज़ कर लिया। मेल्टिंग पॉइंट इसका बड़ा ही हाई है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो नहीं कोई जल्दी मेल्ट कर जाएगा, तो वहाँ इसके मेल्टिंग पॉइंट हाई करना पड़ता है, यहाँ बॉइलिंग हाई करना पड़ता है, फ्रीजिंग लो करना पड़ता है, ठीक है ना। गैस में भी ये देखा जाता है कि यूनिफॉर्म एक्सपेंशन हो। हमारे पास गैसीय थर्मामीटर भी हैं। हाँ जी, मेटल नहीं, गैस ही यूज़ होगी, गैस ही यूज़ होनी है। हाँ, कौन सी गैस यूज़ होती है वही हमने देखना है कि जो गैस हमने यूज़ करनी है उसका यूनिफॉर्म एक्सपेंशन हो, नंबर 1। नंबर 2, जो गैस एक्सपेंड कर रही है, ठीक है ना, उसका जो हाई टेम्परेचर जो मैक्सिमम आप सकते हैं, हाँ जी,
वो देखना होता है, लो टेम्परेचर कितना उससे माप सकते हैं वो देखना होता है। गैस में तो एक्सपेंशन बहुत फास्ट होती है, फॉर एवरी 1 डिग्री गैस ज़्यादा एक्सपेंड करेगी, सॉलिड बहुत कम करेंगे, लिक्विड ज़्यादा करेंगे, गैस और ज़्यादा करेगी, ठीक है ना। तो फिर गैस के पैरामीटर उसके प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, फिर उसकी टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज का एक्सपेंशन कंट्रैक्शन है। तो हमें कोई ऐसा ही फिजिकल प्रॉपर्टी देखनी है। लिक्विड थर्मामीटर में हमने देखा शाइनिंग है, हमने देखा ये हीट को रिस्पॉन्स देता है, थोड़ा सा टेम्परेचर चेंज हुआ तो एक्सपेंशन हो जाती है, ठीक है ना। तो रेट ऑफ एक्सपेंशन यूनिफॉर्म है, शाइनिंग है, डजंट वेट द वॉल्स ऑफ द ट्यूब। फिर इसका बॉइलिंग पॉइंट बड़ा हाई है 357 है, इसका फ्रीजिंग पॉइंट बड़ा कम है। तो -39 से लेकर 357 तक कोई भी टेम्परेचर ये मेज़र कर सकता है। शाइनिंग है, इसका राइज और फॉल इन द ट्यूब आपको विजिबल होता है। और ट्रांसपेरेंट लिक्विड पानी ले लिया, अल्कोहल ले लिया, विजिबिलिटी नहीं रहेगी। तो सिमिलरली गैस में भी हमने ऐसी गैस की सिलेक्शन करनी है जिसका यूनिफॉर्म एक्सपेंशन हो, जो लो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर जी उसका ये देखना होता है कितना लो कितना हाई से माप सकते हैं। फिर ये प्लैटिनम थर्मामीटर है, इसमें रेजिस्टेंस का कंसेप्ट है कि रेजिस्टेंस जो है इट इंक्रीजेज विद टेम्परेचर एंड डिक्रीजेज विद डिक्रीज इन टेम्परेचर। ओके, यूनिफॉर्म इसका रेजिस्टेंस चेंज होना चाहिए, फॉर एवरी 1 डिग्री चेंज इन टेम्परेचर देयर शुड बी सेम चेंज इन द रेजिस्टेंस। तो ये चीज फैक्ट्रीज में ध्यान रखा जाता है, ठीक है ना। तो आपको लिक्विड थर्मामीटर बता दिया, गैस थर्मामीटर बता दिया, प्लैटिनम थर्मामीटर बना दिया, और इसके बाद 2 थर्मामीटर और हैं जो आप यहाँ यूज़ करेंगे, वो है पैरोमीटर्स और वेपर प्रेशर थर्मामीटर। पैरोमीटर्स एंड 5वां है वेपर प्रेशर थर्मामीटर। ओके, फिर ये जो आपने 5 स्केल्स लिए, ये दीज स्केल्स आर रिलेटेड टू ईच अदर। फॉर एग्जांपल, अगर सेल्सियस को आपने फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, टेम्परेचर इन सेल्सियस -0 over 100, दिस विल बी टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। ऐसे लिख लो, टेम्परेचर इन सेल्सियस -0 over 100, इधर टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट TF -32 over 180, टेम्परेचर इन र्यूमर -0/80, टेम्परेचर इन रैंकिन। तो ये टेम्परेचर इन रैंकिन स्केयर में आपको -460 डिवाइडेड बाय 672, और कैल्विन टेम्परेचर इन कैल्विन -273 डिवाइडेड बाय 100, ये है। All these temperatures, they are related to each other, and you can correlate or you can convert one temperature in one scale into temperature in the other scale. For example, you can convert degree Celsius into degree Fahrenheit. Make use of these two first relation. Okay. When you construct a thermometer, any thermometer, तो क्या करते हैं, स्केल ये कैसे बनाते हैं स्केल? आप मान लीजिए यहाँ मरकरी लेते हैं, ये ट्यूब है मरकरी, ये इसमें मरकरी है, यहाँ अपर फिक्स पॉइंट होता है, अपर फिक्स पॉइंट जो कि लिक्विड का बॉइलिंग टेम्परेचर होता है। यहाँ एक लोअर फिक्स पॉइंट होता है, लोअर फिक्स पॉइंट जो कि मेल्टिंग पॉइंट होता है, इधर बॉइलिंग पॉइंट होता है। ओके, तो पहली प्रॉब्लम आती है कि इस थर्मामीटर के अंदर मरकरी की फिलिंग कैसे की जाए। इसमें एक बड़ी नैरो ट्यूब होती है, कैपिलरी ट्यूब उसको बोलते हैं, बहुत ही नैरो होती है, और मरकरी बड़ा डेंस है। मरकरी की डेंसिटी 13.6 ग्राम पर सीसी है। गाढ़ा लिक्विड है, नैरो ट्यूब है, कैपिलरी ट्यूब है,
तो इस नैरो ट्यूब में मरकरी कैसे डाला जाए, तो उसके लिए एक अल्टरनेट हीटिंग एंड कूलिंग प्रोसेस यूज़ की जाती है। इसको गर्म किया जाता है, गर्म करने से जो मरकरी ये बीच में एयर है वो एक्सपैंड करेगी, यहाँ से एयर निकल जाती है। यहाँ एक्चुअली फनल होती है जिसमें हम मरकरी को डालते हैं, तो यहाँ फनल होती है। ओके, यहाँ मरकरी डालेंगे, वो इसमें ट्यूब में कैसे जाएगा, नहीं जा रहा, एयर ने उसको अपवर्ड थ्रस्ट लगा के नीचे आने से रोक रखा है। नैरो ट्यूब है, मरकरी की डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, तो फिर हम क्या करते हैं, ट्यूब को गर्म करेंगे। गर्म करने से जो एयर इसके अंदर ट्रैप हुई हुई है बाहर आ जाएगी। हीटिंग करी, फिर हम इमीडिएटली फिर कूलिंग करेंगे। कूलिंग से जो एयर बची है इस ट्यूब के अंदर वो कंटैक्ट कर जाएगी, खाली जगह कुछ बच जाएगी, मरकरी उसमें चला जाएगा। सेकंड टाइम फिर हम हीटिंग करेंगे, फिर जो एयर बची हुई है वो बाहर आ जाएगी। फिर हम कूलिंग करेंगे, फिर कंट्रैक्शन होगी, फिर कुछ खाली जगह आ जाएगी, फिर मरकरी थोड़ा और अंदर चला जाएगा। तो ऐसे अल्टरनेट हीटिंग कूलिंग, हीटिंग कूलिंग, हीटिंग कूलिंग से यू फिल द कैपिलरी ट्यूब विद मरकरी। ओके, जब ये फिलिंग हो गई फिर हम क्या करते हैं, ये मार्क करते हैं अपर फिक्स पॉइंट और लोअर फिक्स पॉइंट। लोअर फिक्स पॉइंट कैसे मार्क करते हैं, ये जो बल्ब है इसको हम आइस में डिप करते हैं। यहाँ आइस है, आइस का मेल्टिंग पॉइंट 0 है, जो भी मेल्टिंग पॉइंट होगा वो यहाँ फिक्स हो जाएगा। क्या मतलब, इसमें जो मरकरी आपने डाला था और बल्ब को आपने आइस में डिप किया है, आइस का टेम्परेचर 0 डिग्री है, तो मरकरी विल ट्राई टू अटेन 0 डिग्री टेम्परेचर। ओके, तो आपने नॉर्मल टेम्परेचर पे मरकरी की फिलिंग की है, रूम टेम्परेचर पे, और आपने बल्ब को आइस में डिप कर दिया है, तो मरकरी जो है वो 0 डिग्री टेम्परेचर अटेन करने की कोशिश करेगा। तो मरकरी कंटैक्ट करता चला जाएगा, यहाँ तक मरकरी आके रुक जाएगा। उसके बाद जो टेम्परेचर है आइस का वो 0 डिग्री पे फिक्स है, मरकरी ने 0 डिग्री टेम्परेचर अटेन कर लिया है। अब मरकरी और आइस सेम टेम्परेचर पे आ गए, अब फर्दर कंट्रैक्शन नहीं होगी, सेम टेम्परेचर पे आ गए ना दोनों। तो जब आप 5 मिनट इंतजार करेंगे कि 5 मिनट यहाँ मरकरी का लेवल खड़ा रहता है और नीचे नहीं आता, तो आप इसको मार्क कर देंगे, इसको बोलेंगे लोअर फिक्स पॉइंट है। ठीक है, अगर ये लोअर फिक्स पॉइंट है और आप ये थर्मामीटर बनाना चाहते हैं, तो ये यहाँ जो लिखा जाता है वो लोअर फिक्स पॉइंट है, लोअर फिक्स पॉइंट। अब यहाँ आइस का मेल्टिंग पॉइंट 0 है, सेल्सियस थर्मामीटर बनाने में इस लोअर फिक्स पॉइंट को हम 0 लिख देंगे। ओके, उसके बाद हम इसको स्टीम के अंदर डिप करेंगे मरकरी को, ये जो बल्ब है, अब स्टीम में डालेंगे। स्टीम का टेम्परेचर 100 डिग्री है, तो मरकरी एक्सपेंड करेगा, टेम्परेचर डिफरेंस है ना, हीट विल फ्लो। तो फिर स्टीम से ये बल्ब गर्म होगा, मरकरी एक्सपेंड होगा, करते करते एक्सपेंशन जो आलतू फालतू मरकरी होगा बाहर निकल जाएगा, और इस लेवल पे मरकरी 5 मिनट खड़ा रहता है, जो कि बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ स्टीम है, वाटर है, वो अटेन कर लिया। उसके बाद तो मरकरी का टेम्परेचर और स्टीम का सेम टेम्परेचर हो गया, तो फर्दर जो राइज ऑफ लेवल ऑफ मरकरी है इन द ट्यूब रुक जाएगा। तो 5 मिनट अगर मरकरी यहाँ खड़ा रहता है तो फिर इसको हम मार्क कर देते हैं अपर फिक्स पॉइंट। जैसे जो टेम्परेचर इसमें लिखा होता है फॉर एग्जांपल 98.4 डिग्री सेल्सियस, तो जो बल्ब है उसे 98.4 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में रिटेन करते हैं। नहीं, वो हमारा क्लिनिकल थर्मामीटर होता है, ये लेबोरेटरी थर्मामीटर है। क्लिनिकल थर्मामीटर में हम यहाँ बेंड कर देते हैं कि मरकरी अपने आप नीचे ना आए। एक पेशेंट का टेम्परेचर माप लिया, टेम्परेचर 102 फारेनहीट था, मान लो मरकरी राइज कर गया था, अब मरकरी वहीं खड़ा रहेगा, अपने आप नीचे नहीं आएगा, क्योंकि इसमें एक बेंड होता है यहाँ। तो फिर डॉक्टर ना थर्मामीटर को ऐसे झटका देता है, झटके से वो जो बेंड के थ्रू वो लिक्विड मरकरी नीचे आ जाता है। हाँ जी, फिर सेकंड पेशेंट के लिए उस थर्मामीटर को यूज़ किया जाता है। ठीक है ना। तो एक मिनट बस, ये लोअर फिक्स पॉइंट अपर फिक्स पॉइंट कैसे मार्क करते हैं। लोअर फिक्स पॉइंट के लिए हमने बल्ब को आइस में डिप करना है और मरकरी का लेवल नीचे चला जाएगा, मरकरी कंटैक्ट करता जाएगा, और जब मरकरी इस जगह खड़ा हो गया 5 मिनट, इससे नीचे लेवल नहीं जा रहा, तो इसको हम लोअर फिक्स पॉइंट मार्क कर देंगे। और फिर हम इसको स्टीम में डिप करेंगे, तो एक्सपेंशन होगी, टेम्परेचर स्टीम का ज़्यादा है, तो मरकरी विल गेट हीट फ्रॉम द स्टीम एंड विल स्टार्ट राइजिंग अप एंड अप एंड अप, and it will go up to the maximum level, and further rise of mercury level stops. You wait for 5 minutes, okay, then mark it as a upper fixed point.
एंड देन यहाँ इसको थोड़ा गर्म करो, ये मेल्ट हो जाएगा, फिर ये फनल को यहाँ से हटा दो। ओके, फिर यहाँ एक ऐसे हुक लगा देते हैं, क्योंकि टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए कई बार इसको स्टैंड पे लगाना पड़ता है। तो ये लोअर और अपर फिक्स पॉइंट मार्क हो गए। अब आप कौन सा थर्मामीटर बनाना चाहते हो? सेल्सियस में लोअर फिक्स पॉइंट 0 है और अपर फिक्स पॉइंट 100 है, ठीक है। तो ये टेम्परेचर जो भी आप मापना चाहते हो सेल्सियस में, जो भी किसी बॉडी का टेम्परेचर है, वो यहाँ लिखा जाता है माइनस लोअर फिक्स पॉइंट जो कि 0 है इन केस ऑफ सेल्सियस थर्मामीटर, और नीचे जो लिखा जाता है दैट इज द डिफरेंस बिटवीन अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट। ओके, अपर फिक्स पॉइंट 100 है, लोअर फिक्स पॉइंट 0 है, दोनों का डिफरेंस 100 है। तो इस गैप को हम 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं और ईच पार्ट को 1 डिग्री सेल्सियस कहने लग जाते हैं। ओके, अगर आप फारेनहाइट थर्मामीटर बनाना चाहते हो तो फिर इसी 0 को हम 32 लिख देते हैं और अपर को हम 210 लिख देते हैं। ये फारेनहाइट के लिए है, ये सेल्सियस के लिए है। लोअर फिक्स पॉइंट 32 मीन्स 0 डिग्री सेल्सियस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर है या मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस है, लेकिन उसी को अगर हमने फारेनहाइट में लिखना हो तो 32 डिग्री फारेनहाइट वो आइस का मेल्टिंग पॉइंट है। 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 32 डिग्री फारेनहाइट, ये लोअर फिक्स पॉइंट है। और पानी जैसे 100 डिग्री पे बॉयल करता है, फारेनहाइट में इसको 212 बोलते हैं। वही सेम टेम्परेचर, बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ वाटर 212। ओके, तो यहाँ जो लोअर फिक्स पॉइंट है 32 था, इसलिए हमने जनरली यहाँ लोअर फिक्स पॉइंट जो भी थर्मामीटर आप बनाना चाहते हो, हाँ जी, फारेनहाइट बनाना है तो लोअर फिक्स पॉइंट 32 है। ओके, और यहाँ नीचे हमने डिफरेंस लेना है 212 माइनस 32, वो 180 आएगा। तो नीचे वही चीज़ आएगी, अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट, सभी में यही आएगा। तो ये एक जनरल फार्मूला हो गया। कौन सा जनरल फार्मूला? ये हो गया कि टेम्परेचर जिस भी स्केल में आप लेना चाहते हैं, माइनस लोअर फिक्स पॉइंट डिवाइडेड बाय अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट, ये है हमारा अननोन टेम्परेचर ऑन एनी स्केल। हर स्केल का लोअर फिक्स पॉइंट अलग अलग है, अपर फिक्स पॉइंट अलग अलग है, और टेम्परेचर भी अलग अलग स्केल में अलग अलग आएगा। अब आप र्यूमर ये लेना चाहते हो, यहाँ लोअर फिक्स पॉइंट 32 है और डिफरेंस इनका 180 है, इसलिए यहाँ 180 लिखा है। यहाँ अपर फिक्स पॉइंट 100 है, लोअर फिक्स पॉइंट 0 है, तो डिफरेंस 100 आया। अब यहाँ लोअर फिक्स पॉइंट 0 और अपर फिक्स पॉइंट हम लिख देंगे 80, और ये बन जाएगा र्यूमर थर्मामीटर। लोअर फिक्स पॉइंट 0, अपर 80, और डिफरेंस जो है नीचे डिफरेंस आता है वो 80 माइनस 0 80। तो इसी पोर्शन को हम 80 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सेल्सियस में इसी को 100 में डिवाइड किया, फारेनहाइट में इसको 180 से डिवाइड किया, र्यूमर में इसको 80 से डिवाइड किया। तो फिर एक डिग्री र्यूमर बढ़ा है कि 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है या 1 डिग्री फारेनहाइट बढ़ा है? तीनों में से बताओ। यस, क्योंकि इसमें 80 पार्ट हुए हैं, सेम स्पेस को 80 पार्ट में डिवाइड किया है। तो फारेनहाइट में इसको 180 में डिवाइड किया है, सेल्सियस में इसी को 100 में डिवाइड किया। तो इसलिए इन तीनों में र्यूमर सबसे बड़ा, 1 डिग्री र्यूमर इज मोर देन 1 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, फिर अगर आप ये रैंकिन वाला लेना चाहते हैं तो रैंकिन में लोअर फिक्स पॉइंट कितना है? 460। यहाँ 460 लिख देंगे, यहाँ 672 लिख देंगे, ये रैंकिन का आ जाएगा। और इनका डिफरेंस कितना है? 212। नीचे वही आ रहा है ना, अपर माइनस लोअर। अपर है 672, लोअर है 460, और स्केल ले रहे हैं रैंकिन। ओके, तो फिर ये 212 में डिवाइड होगा। गॉट माय पॉइंट? फिर आप अगर केल्विन वाला लेते हो तो केल्विन में हम जो नीचे वाला लेते हैं वो है 273.15, इधर लेते हैं 373.15, ये केल्विन का बन जाता है। लोअर फिक्स पॉइंट ये है केल्विन में, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273.15 केल्विन। ये सारे बराबर है क्योंकि ये पॉइंट फिक्स है। 0 डिग्री सेल्सियस 32 डिग्री फारेनहाइट, 0 डिग्री र्यूमर 460 रैंकिन, और 273.15 केल्विन सेम है।
अपर बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट तो पानी का वो सेम ही रहना ना, स्केल आप जो मर्जी ले लो। तो मतलब 100 पे पानी बॉयल करेगा सेल्सियस में, 212 पे फ़ारेनहीट में पानी बॉयल करेगा, ये इक्वल ही है। और र्यूमर में 80 डिग्री र्यूमर पर पानी बॉयल करेगा, और ये रैंकिन में 672 डिग्री रैंकिन पे पानी बॉयल करेगा, और 373.15 पे केल्विन पे है। तो वही सेम बॉइलिंग पॉइंट, स्केल अलग अलग है, क्वांटिटी तो वही है। तो यहाँ जो अपर और लोअर में जो गैप आता है, यहाँ 100 का गैप है, यहाँ ये 180 का गैप है, दिस माइनस दिस। डिनोमिनेटर में वही आना है जो अपर फिक्स पॉइंट और लोअर फिक्स पॉइंट का डिफरेंस है। ओके, आप यहाँ जो टेम्परेचर आप मापना चाहते हो जिस स्केल में, वो यहाँ लिखना है माइनस लोअर फिक्स पॉइंट। जैसे मान लो इस स्केल में मापना है रैंकिन में, तो ये रैंकिन में यहाँ कितना आएगा 460, यहाँ कितना आएगा 212। नहीं, रैंकिन की बात कर रहा हूँ, ये वाला लोअर फिक्स पॉइंट यहाँ आएगा, और यहाँ अपर फिक्स 672 है, लोअर फिक्स 460 है, डिफरेंस लेना है यहाँ। तो यहाँ 212 आ जाएगा, यहाँ 460 आ जाएगा। यहाँ जो टेम्परेचर जिस भी स्केल का है, ओके, वो टेम्परेचर आपको बता देगा। ओके, ये चीज़ें आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी ना पढ़ी होंगी। 5 टाइप के थर्मामीटर हैं, 5 टाइप की स्केल्स हैं, फिर पांचों का आपस में रिलेशन है। और थर्मामीटर में आप कौन सा लिक्विड थर्मामीटर में लिक्विड लेना है, गैस थर्मामीटर में गैस लेनी है, प्लेटिनम थर्मामीटर में प्लेटिनम ही लेना है। पैरोमीटर में भी हम जो गैसेस होती हैं ना, उनका टेम्परेचर मापते हैं। जब जो मान लीजिए उधर आग लगी है, ठीक है, और वहाँ से हीट रेडिएशन निकल रही है, तो हीट रेडिएशन किस टेम्परेचर पे निकल रही है हम दूर से मापना चाहते हैं, तो फिर हम पैरोमीटर यूज़ करते हैं। सन से रेडिएशन आ रही है, अब सन का टेम्परेचर तो नहीं हम माप सकते, जो रेडिएशन ही है।